معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے ہم پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے نمائندوں کے انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے آج کے اس اہم پریس کانفرنس میں شرکت کی، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، تمام صحافی حضرات کی خدمت میں عرض ہو تاکہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہماری آواز حکومت ایوانوں تک پہنچا سکے۔ آج بیوگا بلوچستان اور گرینڈ ڈلائنس میونسپل کارپوریشن کے مشترکہ پریس کانفرنس اس لیے رکھا گیا ہے کہ گرینڈ ڈلائنس بیوگا کا ایک اٹو ٹنگ ہے اور گرینڈ ڈلائنس کے صدر اور کابینہ کے ساتھ میونسپل کارپوریشن کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر جس طرح کا سلوک روا رکھا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ جس طرح کے انتقامی کارروائی ایڈمنسٹریٹر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے پولیس کے ذریعے گرینڈ ڈلائنس کے صدر و کابینہ کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں، اور جب ایڈمنسٹریٹر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی ہے تو صدر اور سینئر نائب صدر کو معطل کر دیا جاتا ہے، تاحال برقرار ہے۔ چونکہ گرینڈ ڈلائنس کے صدر اور کابینہ صرف اتنا ان کا قصور ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درمیان جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کی معاہدے کی کاپی ہمیں فراہم کی جائے کہ ہم ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا۔ بس یہ بات کرنی تھی کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب غصے میں آ گئے اور ہمارے مستقبل ایک ایسے ٹھیکیدار کے ہاتھوں میں سونپا گیا ہے جو بڑے دھوکے کے ساتھ سابق دور میں 2.5 کروڑ روپے ہضم کر چکا ہے۔ اس پر ایڈمنسٹریٹر کے مہربانی ٹھیکیدار پر مزید بڑھ گئی ہے کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اربوں روپے کے مشینری ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا ہے اور گرینڈ ڈلائنس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے معاہدے کے مطالبے کو بھی سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر بھی موصوف کی تسلی نہیں ہوئی۔ اس معاہدے کو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے بھی چھپایا گیا ہے، ان کے بھی اس کی کاپی فراہم نہیں کی گئی ہے۔ گرینڈ ڈلائنس کے ساتھ میٹنگز آف منٹس کرنے کے باوجود منظور شدہ مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے مطالبات پر عمل درآمد کرنے کے بجائے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں موجودہ لابی کو اپنے ساتھ ملا کر کوئٹہ شہر کو تباہ حال کے طرف دھکیل دیا گیا ہے اور پورے کوئٹہ شہر گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔
معزز صحافی حضرات اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اربوں روپے کے اثاثوں کو ٹھیکیدار کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ مخصوص لابی کے ساتھ خفیہ میٹنگز کی جاتی ہے، روز رات کے اندھیروں میں ان لوگوں کے اختیارات کو وسیع کیا جا رہا ہے، جن کے پاس عرصہ دراز سے چار برانچوں کے اختیارات ہے، بلکہ پانچویں برانچ کا اختیارات بھی ان کو کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لا کو انکروچمنٹ سیل کا چیف انچارج بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے مطالبات کے نقشے برانچ، برتھ برانچ، لائسنس برانچ، ٹیکس برانچ، اسٹیٹ برانچ، انجینئرنگ برانچ سمیت جن افسروں نے کروڑوں روپے کی خرد برد کیے ہیں، جن کے اثاثے کروڑوں کی ہو چکی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، بلکہ بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مہربانیوں کا سلسلہ تم نہیں رہا ہے۔ جو حق اور سچ کے بات کرتے ہیں انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ادارے کے معاہدے کی کاپی فی الفور منظر عام پر لایا جائے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مستقل ملازمین اور عارضی ملازمین کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے۔ تمام مستقل ملازمین کو ٹھیکیداری نظام کے تحت تابع نہ کیا جائے، کیونکہ ادارہ اعضاء میں افسران کے بائی بھی ٹھیکیداری کر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، میٹروپولیٹن کارپوریشن 2017 سے 2024 تک کا بجٹ فراہم کیا جائے، ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی بروقت کیا جائے، عارضی ملازمین کی تنخواہوں کو حکومتی نوٹیفکیشن کے مطابق 37,000 ادا کیا جائے، صدر اور سینئر نائب صدر کی معطلی فی الفور ختم کیا جائے، عرصہ دراز سے برانچوں میں بیٹھے ہوئے افسران کو ٹرانسفر کیا جائے، ایک سے زائد برانچ کا انچارجوں کو صرف ایک برانچ کا چارج دیا جائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں موجودہ لابی کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ ہر ایڈمنسٹریٹر اس کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ پینشنر کی پینشن اور گریجویٹی جو کہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے، ادائیگی فرمائی جائے، ملازمین کی تنخواہوں کو ہر ماہ 1 تاریخ کو ادا کیا جائے، پورے بلوچستان کے ملازمین کا 10% DRA الاؤنس بقایا جات فی الفور ادا کیا جائے۔ بیوگا بلوچستان یہ سمجھتی ہے کہ گرینڈ الائنس کے ساتھ انتقامی کارروائی کر کے ایڈمنسٹریٹر صاحب فتح یاب ہوں گے، یہ بالکل ہمارے حوصلوں میں مزید پختگی آ گئی ہے۔ بیوگا بلوچستان اور گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن کارپوریشن حکومت بلوچستان پر پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ اور کمشنر کوئٹہ ایک وقت میں 2 عہدوں کا اہلیت نہیں رکھتے ہیں، ان سے ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ
लिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम तंजीमों ये भी मुतालबा करती है कि वासा मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी हर माह यकीनी बनाया जाए, के बल्दिया के मुआहदे को भी मंजरियाम पर लाया जाए कि किन शराइत पर केपिया बल्दिया को एक्शन किया गया है। तंजीमें आज़ा आपकी हर अच्छा काम को सराहेगी, मगर जहां हमारी मुलाजमीन की हक और हकूक की बात आएगी तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है कि मैंने अरबों रुपए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जायदादों को मंजरियाम पर लाया हुआ है। इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किया, मगर सद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किराए, जायदाद, टैक्स वगैरह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कोड़ियों के मोल में मिल रहा है, जिसकी वजह से इदारे कर्जे में डूबता जा रहा है और लोग अपने ज़ाती मुनाफे के खातिर किराए 10-10 हज़ार वसूल कर रहा है और इदारे अज़ा को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आज वो मुलाजमीन आपकी कुर्बत में बैठे हुए हैं और जिनकी इमा पर आप आए रोज नए एकामात सादर फरमा रहे हैं और काम करने वाले मुलाजमीन को मुअत्तल कर रहा है। तंजीम आज़ा ने आपको पहले ही आगाह किया था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मखसूस लॉबी ने इदारे का सत्यानाश कर दिया है, लिहाजा इससे दूर रहे। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10-10 हज़ार रुपए लेने वालों के नाम भी लेता तो ये इदारे के मुफाद में होता, मगर सद अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बेवगा बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 15 नवंबर 2024 के बाद अपने अगला लायामल का ऐलान करेंगे। एक बार फिर हम तमाम मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारे मसले को अपना मसला समझकर यहाँ पर आए हैं। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। वाइस चेयरमैन ने फरमाया मुलाजमीन के हम यहाँ आए हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र किया और मुलाजमीन के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब और कमिश्नर साहब ने जो हमारे साथ वादे किए थे उस वादे पे वो कायम ना रहे। हमें नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कौन सा लिखल नंबर बना रहे हैं। अब आप अपने दफ्तर में ही जाके देख लें। हमारे अभी कुछ मीडिया के साथियों ने फ़ोटोज लिए हैं तो उसके दफ्तर का ये हाल है तो बारी क्या सफाइयाँ करेंगे। तो ये कोयटा हमारा शहर है, हम इसके रहने वाले हैं, हम इसके वासी हैं। यहाँ पे मौजूद तमाम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सूबा बलूचिस्तान खूबसूरत से खूबसूरत हो और उस पर जंगी बुनियादों पर काम हो। महज मीडिया पे आकर बैठ जाना और अपने साथ आपको क्या ऐसी
कमी महसूस हुई, तर्जुमान साहब को अपने आप बिठाया और जो आपके मुंह में आया आपने कह डाला। अगर आपने ये ज़मीनें मेट्रोपॉलिटन की जो वागज़ार कराई हैं, बहुत अच्छा काम किया, हम आपके इस काम को सराहते हैं। लेकिन आप जो भी, हम आपके ठेके के ख़िलाफ़ नहीं है, आपके ठेकेदारी निज़ाम, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं जो आपने ठेकेदारी निज़ाम राइज किया है तो उसकी जो मुआहदात की कापी हैं या जो आप उनसे मुआहदा करते हो तो काइंडली उनको प्रेस के सामने, मीडिया के सामने और उन लोगों के सामने जो मजदूर मुलाजिम है उनके सामने आप रखें। और आपको ऐसी क्या यहाँ मुसीबत पेश आई कि आपने जिन लाबी का हम जिक्र कर रहे थे या जिन लाबी को हमने कहा था कि आप उनसे दूर रहें, तो आप उनके साथ जाके मिल के बैठ गए और उनकी हिमा पर जो आपका दिल चाहता है आप कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हमें मुआहदात की कापी फराम की जाए तो आप हमारे घरों पे छापे मारते हो, दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कबायली इलाका है। आप जिस महफिल में जाके बैठते हो आप कहते हो कि मुझे थ्रेट मिलता है, मुझे कहते हैं कि हम आपको इस्लामाबाद में नहीं छोड़ेंगे। छोड़ तो आप हमें नहीं रहे हो, हमारे घरों पे छापे मार रहे हो। कि कहाँ का इंसाफ है, आप आके छापे मार रहे हो हमारे घर पे। सिर्फ मैं टिक टॉक कर की हद तक आप काम कर रहे हो, बाकी ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अप्रिशिएट कर सके। आपने जो ज़मीनें वागज़ार कराई हैं और जो ज़मीनें आपने वागज़ार कराई, हम देखते हैं कि आपके बल्दिया के जो आपने ऑक्शन किया है आप उसको भी आप पब्लिक करें। आप जो भी करेंगे आप उसको पब्लिक करें। आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि हम ठेकेदार के हाथ में हैं तो किस तरह हैं। 3 महीने हो गए आपने अभी तक जो है पेंशनर्स को पेंशन्स नहीं दिए हैं। आप बड़ी बड़ी दावे करते हो। आज 7 तारीख है, आप आज का अभी तक आपके पक्कों की और कच्चों की तनख्वाहें नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप यहाँ बैठकर लोगों को वरगला रहे हो टिकटॉक के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो मेरे ख्याल है मेरे सारे भाई जो बैठे वो सारे उनको पता है, उनके बरक्स आप काम कर रहे हो। आपको हमने कहा था कि आप रीशफलिंग करें, आप रीशफलिंग के बजाय आपके पास अपने पास 2 चार्ज है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप काम कर सकें। आप रीशफलिंग के बजाय हमें मुअत्तल कर रहे हो और जूनियर्स को सीनियर्स पर फोकियत दे रहे हो। एक आदमी के पास इस टाइम 4 चार्जेस मौजूद हैं। तो ये आप अपने दफ्तर को नहीं संभाल सकते तो आप बाहर क्या काम करेंगे? ओके, तो अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल, कोई बातचीत करनी है। ये बताएं, आप लोग जब भी मुलाजिम पे मुश्किल होता है या तो आप लोग कबायली रवायात को इस्तेमाल करते थे कि भाई कबायली सुबह है, और कुछ जो आपकी मुलाजिमीन हैं जो 6-6, 5-5 जगहों पे बैठे छाप संभाले हुए हैं, उनके खिलाफ तो आप एक बात भी नहीं करते। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा काम करता है उसके खिलाफ आप मैदान अमल में आते हो, वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, हमने पहले भी अपनी इस प्रेस का चार्ज हैं, आप उनको एक पर लिखा है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ ज़मीर फरोशी के साथ झूठ फरोशी भी बहुत चल रही है। जो वादे कुरान उठाकर किए जाते हैं सबसे पहले उनकी नफ़ी की जाती है। अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब एक ऐसी जगह के हैं कि जो किसी चीज़ को भी अपने कार्यकाल नहीं लाते। पता नहीं कौन से गिदर सिंगी का भी हमने जिक्र किया कि कौन सी गिदर सिंगी है लॉबी के पास कि आप उसकी बात मान रहे हो। अब देखें कितना बड़ा जुल्म है कि डिप्टी डायरेक्टर लॉ, जिसका काम कानून से हटकर दूसरा कोई काम करना ही नहीं है, उसको इंक्रूचमेंट सेल का चीफ बना दिया गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने बल्दिया कैफे बल्दिया को पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं जिनके हवाले कर दिया है, ऑक्शन कर दिया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी मैंने ये कर दिया मेट्रो के लिए। आप ये देखें कि ये वो शख्स है इस शख्स को ठेका दिया गया है, ये 2.5 करोड़ रुपए हजम कर चुका है। डॉक्टर कलीमुल्लाह के दौर में ये 2.5 करोड़ रुपए हजम कर चुका है। हमने कहा था कि आप बेशक आप ये ठेका करें, हुकूमत की पॉलिसी आप उस पर चलें, लेकिन ऐसे ठेकेदार को मंजरे आम पर ले जाए या ठेकेदारी मुआहदा किया जाए। कमिश्नर साहब के भी ये मुतालबा ख्वाहिश है कि शेर में समाये हो जाए, लेकिन आप लोगों की मुजब कॉन्फ्रेंस में भी ये मुतालबा है
तो 37,000 देनी चाहिए थी। अब हमारे पास 1400 मुलाजमिन थे, अब ठेकेदार 120 मुलाजमिन से काम ले रहे हैं। बाकी मुलाजमिन का मशीनरी हमारी, पेट्रोल हमारा, लेबर हमारी, और तनख्वाहें अभी तक वही 15,000। फिर प्राइवेट इदारे, जब हम मेट्रो सरकारी तौर पर इसको चला रहे थे तो इसको प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल इस चीज़ की। अब इसमें कमीशन लिया गया है या अपने ज़ाती मुनाफे को खातिर में लाया गया। वो अभी कमिश्नर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र करते, आपने जब 15,000 दे रही थी गवर्नमेंट, तो आपने 15,000 पर क्यों दिया? नजीम साहब ये बताएं कि ये जो 1400 मुलाजमीन की आप जिक्र कर रहे हैं, 150 से 200 से काम दे रहे, ये 1200 मुलाजमीन जो वो है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आजनाल और माफियाज और पुलिस लोगों ने अपने दे रखे हैं, 10-10 20 की भर्ती की, बीवी को भी भर्ती किया, बेटे को भी भर्ती किया, पूरा खानदान भर्ती हो चुका है। तो ये वो मुलाजमीन को काम कैसे करेगा? उसके लिए तो हड़ताल भी हो जाते हैं, कच्चे मुलाजमीन के लिए पक्की हड़ताल करते हैं, ये समझ के बराबर बात है। दूसरी बात ये जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, वीडियो है, इसमें आप लोगों का क्या बोले? एडमिनिस्ट्रेटर को तो 1 साल हो गया। अलमिया है कि अखबारी नुमाइंदा जब बोलेगा आप माफिया दो, कहने का मकसद ये कि हम जब आवाज़ उठाते हैं तो ये हमारा हक है एहतजाज करना। मैं आपका एक जहन में डालूं, जब ये सरकारी तौर पर था तो हमारे पास 450 लोग थे जो हल्कों में 58 हल्कों में काम कर रहे थे 4 की तादाद से, जब ये इदारा प्राइवेट नहीं हुआ था। अब वो सारे लोग निकाल दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने एक कलम की जुम्बश से सबको फारिग कर दिया है। अब जो तमाम हमारे रिसोर्सेज हैं वो ठेकेदार के हवाले। होना तो ये चाहिए था ठेकेदार अपनी मशीनरी ले आता, अपने लोग हायर करता, लेकिन वो इन्हीं लोगों में से 120 लोगों को हायर किया गया, बाकी सबको घरों में। जो आपने जिक्र किया कि जी जिन्होंने अपनी बीवियां वगैरह ये भर्ती की थी, हम उनके लिए नहीं निकले, वही लॉबी थी जिसका हमने एडमिनिस्ट्रेटर को जिक्र किया था कि भाई इस लॉबी से आप अपना ख्याल रखें। ये 300-300 400-400 लोग हैं जो इनके लोग हैं जो घर में बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे लोग नहीं हैं। हम तो मेट्रोपॉलिटन के कस्टोडियन हैं, हमने हमेशा मेट्रोपॉलिटन के लिए, कोयटा के वासियों के लिए आवाज़ उठाई है। हमारा किसी माफिया से कोई ताल्लुक नहीं। जी बिल्कुल उठाया, और उस 70 करोड़ की मद में आप भी मौजूद थे, मीडिया के और लोग, हम असेंबली हाल तक गए थे। आपके जहन में हो हमने 3 महीने कैंप लगाया था। अगर हम कस्टोडियन ना होते तो हम कैंप नहीं लगाते। ज़ाहिर है हम इस लोगों, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के वासियों के लिए, कोयटा शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हमने ही आवाज़ उठानी है। ज़ाहिर है हम इस इदारे में काम करते हैं। और वो हम जब इस बारे में हमने बात की उस दौर के एडमिनिस्ट्रेटर से, तो कहता जी ये सेफ सिटी वालों का प्रोजेक्ट है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ तो ये अलमिया है, लोग वो नाम नहीं बताते। मुआहदा मांगे, मुआहदा हम कह रहे हैं कि जी जो आप भी मुआहदा कर रहे हैं प्राइवेट करें इदारे को, लेकिन मुआहदे को मंजर आम पर लें। आपने कल देखा कि एक प्रेस चली है चीफ जस्टिस की कि हमारा स्टे था, इसी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको एक पेशी पे फारिग कर दिया। हमने स्टे दिया था कि भाई हमें वो मुआहदा पहले दिया जाए, फिर उसके बाद आप निजकारी करें। उसके बावजूद कल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ जस्टिस का एक आपके सामने अखबार में है। और मैं दूसरा एक बात बता दूं, इदारा इतना करप्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसके बारे में लिखा। के बाद जो हमारा एहतजाज का तरीक़ाकार होगा वो हम ग्रैंड डलैज़ म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और बेओगा बलूचिस्तान की जितनी भी नुमाइंदा तंजीमें, आज तो ये जितने भी लोग हैं ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन हैं और हमारे साथ है। हमारी जो बेओगा की क़यादत नूर मोहम्मद लांगो साहब, शकर खान रचानी साहब और दूसरे साथी जो है, उस 15 तारीख को जब हम मीटिंग करेंगे उसमें हम अपने एहतजाज का तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। और चाहे वो मुज़ाहरा हो, धरना हो या एहतजाजी कैंप हो या एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर के सामने जो है ना एहतजाज हो, ताकि हम कम से कम कोयटा के लोगों के लिए मुश्किलात कम कर सके। और ये जो भी मायदे किए गए हैं इसकी हम पहले भी हमने मजम्मत की है, आप भी हम मजम्मत कर रहे हैं, इस वजह से कि कोयटा हमारा अपना घर है। ये तमाम लोग कोयटा के रहने वाले लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी के जो
टेक्टिक्स वो हमेशा ऐसे लोगों को ले आता है कि उसको कोयटा की अलिफ बे का पता नहीं होता है, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का हो, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। आप मीडिया के सामने है कि दोनों ऐसे लोग हैं कि वो कहाँ से आए, कैसे आए और किस तरीके से उनका जो काम का तरीक़ाकार है वो किस तरीके से है। सफाई का हालत बद से बदतर है, आप दोस्त देख रहे हैं। लेकिन ये है कि जो स्टेक होल्डर है, जो यहाँ के ओरिजिनल मुलाजमीन है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो कोयटा के मिजाज को समझते हैं, कोयटा की गली गली कुचे कुचे को समझते हैं, उनके हवाले ताकि किया जाए। ये जो 5 चार्जों के 4 चार्जों के जिक्र किया गया है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में हायल अफसर, हायल लोग मौजूद है कि उनको एक एक चार्ज दिया जाए ताकि फिर कोयटा की खूबसूरती को आप देख सकें। थैंक यू।